Yeah, what will be the role of HR in PSU or in any organization? Based on general activities. No, I mean the general category, general way, and in the PSU, the first and foremost, it will be the administrative work like recruitment, performance appraisals. Apart from that, following the statutory compliance, looking towards the trade unions and industrial disputes, and handling the grievances of the workmen. अच्छा, okay. If an employee alleges favoritism in promotion and threatens to escalate the issue to higher authorities, then what will we do? Can you please repeat the question once again? If any employee alleges favoritism in promotion and threatens to escalate the issue to higher authorities, what will we do? First and foremost, take would be to understand the employee that whatever performance appraisal is been done is done by the proper transparency and openness with you. Whatever rating you have got, we have the evidence for it, and even in the certain ways when you were not handling certain things, we have warned you, and based on that, we have provided. If you have certain grievances, then we you can go to the committee of the performance appraisal. They can provide you the rating based on the previous all years, excluding this. Even if you want to take some corrective actions or going through the right procedures, you can appeal to the WPTCL appellate authorities, or else you can go to the Calcutta High Court for it for the legal procedure. ओके। अच्छा, ये आपने एक देखा होगा क्वेश्चन कॉमन होता है कि ट्रेनिंग में नॉमिनेशन का डिस्प्यूट होता है कि जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ एक एम्प्लॉई, मैं काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग करना चाह रहा हूँ बट मेरा नॉमिनेशन हो नहीं रहा है और कोई दूसरा एम्प्लॉई उसका हो जा रहा है। तो फिर एक सिचुएशन आपको दे रहा हूँ, वो मल्टीपल एम्प्लॉइज़ डिमांड नॉमिनेशन फॉर लिमिटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, देन एज़ एचआर हाउ विल यू हैंडल दैट सिचुएशन? For certain training program where all of them have applied for, but some of them are getting chance to speed the training program, right? हुँ, हुँ, हुँ। So in certain situations, I would be firstly bifurcating it based on the need, like in which vertical the training program has been handled, and who are the weekend kind of employees who need the most of the training program. I will be firstly seeing about the productivity of the organization. That the first and foremost thing is to be the efficient financial structure in this year. So for that, I will be choosing those employees who would be very weekend in the particular skills to make them learn about it. ओके। That's all. नहीं, बेसिकली यू हैव टू सबसे पहले एग्ज़ामिन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन अलाइन द नॉमिनेशन विद द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कि किसको ज़रूरत है, एंड इंश्योर फेयर सिलेक्शन। ठीक है? एंड द रैशनले वुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली टू अवॉइड डिससैटिस्फैक्शन कि ये ऐसा है, ऐसा इसका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं इनको नॉमिनेट किया जा रहा है। पता चला इसमें वो नहीं लगना चाहिए कि बायसनेस हो रहा है करके। ठीक है। अच्छा, एक मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, वो बोलता है कि हम टूल डाउन स्ट्राइक कर देंगे ड्यू टू डिले इन कैंटीन फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट। कैंटीन में थोड़ा खाना इधर-उधर हो रहा है या थोड़ा-सा अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से वो स्ट्राइक करने को बोल रहे हैं, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में? So first of all, if it comes under the responsibility of WBPCL, I would be taking in charge of who is taking care of the canteen facility, or if it is taking if contractor is taking care of it, I will be knowing that why cold food or the qualities is not being in the standard way. If it is satisfied that the contractor is not able to handle it or he is providing the cold food, then I will be issuing it as a charge sheet in which the proper way contractor has been asked about the question why it is so and so that, and then I would be talking to the leader of the trade union of the that department, and would be letting them know about the correct actions, as we are also
in the same team of the workmen. And as cool down strike would lead to the illegal strike, as before 14 days you are being acting as a strike. So I will be letting them know. फर्स्टली एक्चुअली ट्राई टू रिमूव द रीज़न ऑफ स्ट्राइक कि रीज़न क्या है कैंटीन वाला है। पहले आपको उसमें देखना है कि जाके खुद 1-2 दिन जाके चेक करना है। मतलब ऐसे नहीं कि बाद में विश्वास कर लिया, 1-2 दिन जाके चेक करना है, खा के देखना है वहाँ खाना। अगर टेस्ट में गड़बड़ है, ठंडा है, तो फिर आप नेसेसरी एक्शन उसके अकॉर्डिंग लीजिए। अगर आपके डिपार्टमेंट में ही कोई एग्ज़ीक्यूटिव जो कि लुक आफ्टर कर रहा है उसके रिगार्डिंग, तो उससे बात करिए। उसको मतलब आप मेल लिख सकते हैं या आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बोल के उनके, क्योंकि वो हो सकता है आपसे सीनियर भी हो, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। तो आप हो सकता है आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बताइए कि सर ऐसा-ऐसा कंसर्न है और ऐसा वर्कर्स करने को बोल रहे हैं, तो वो उनको बुला के समझाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में है तो फिर आप जैसे बोला है तो आप वैसा करिए। एक उसको रिटन में नोटिस दीजिए और बोलिए कि मुझे 3 दिन के अंदर कारण मतलब बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया करके। और ठीक है ऐसा है। तो ठीक है। का मतलब रिप्लाई आपके काफ़ी सैटिस्फैक्टरी हैं। और इसके अलावा जैसे मैं यही बोलूँगा कि जैसे यूनियन और मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, इन सबको थोड़ा-सा आप अपनी तरफ से ही प्रैक्टिस करिए। थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में कि अगर मान लीजिए क कोई एक्सीडेंट हो जाता है प्लांट में, तो आप उसको कैसे हैंडल हैंडल करेंगे। और थोड़ा आईआर इश्यू वगैरह का कोशिश करिए, क्योंकि डब्ल्यूबीपीडीसीएल जो है, एक तुम्हारा पश्चिम बंगाल में यूनियन का काफ़ी इश्यू रहता है, यूनियन और मैनेजमेंट का। हो सकता है वैसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, ठीक है? और एचआर के टॉपिक्स तो क्या ही मतलब उसमें जैसे परफॉर्मेंस अप्रेज़ल है वो तो पढ़ ही लोगे कि अगर तुम कंपनी में 360 डिग्री यूज़ होता है, कि ग्राफिक रेटिंग यूज़ होता है, कि कि मतलब एमबीओ यूज़ होता है, वो तो आदमी बता ही देता है करके। मोस्टली कंपनी में 360 डिग्री ही यूज़ होता है या एमबीओ यूज़ होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिकॉज़ सीनियर मतलब ये उसमें क्या होता है कि 3 तरीके की रेटिंग होती है। एक तो ऑर्गनाइज़ेशन की रेटिंग होती है, एक टीम की रेटिंग होती है, एक इंडिविजुअल की रेटिंग होती है। ठीक है? जैसे कोई भी कंपनी का होता है, एक एमओयू सेट होता है, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, उसकी मिनिस्ट्री से डब्ल्यूबीपीडीसीएल मिनिस्ट्री ऑफ पावर में या स्टेट की मिनिस्ट्री में आता होगा, उसका एमओयू सेट होता होगा कि 1 साल में उनको इतना जनरेट करके देना है या इतना करना है। उसके बाद फिर वो काम उनके प्लांट को जाता होगा, फिर प्लांट के बाद वो इंडिविजुअल को जाता होगा, तो सबकी रेटिंग के हिसाब से ही वो होता है मतलब अप्रेज़ल होता है। तो इस तरीके से उसमें आप और अच्छा आंसर कर सकते हो कि सर, तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल वगैरह आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा। और अभी आपने Yes, sir. क्या I पढ़ा have है? studied about. ओके। Yes, sir. और आपने एचआर में क्या-क्या पढ़ा है? एचआर में सर मैंने आपने जो प्रोवाइड किया वो सब पढ़ा है, और मेरा कुछ नोट्स था वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। हुँ, ठीक है उतना ज्यादातर इनफ मैं है। यहाँ ये पढ़ रहा हूँ कि हुँ, जैसे रिक्रूटमेंट में कंपनी क्या कर रही है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल में कंपनी का क्या रोल है,